ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਵਾਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਐਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਰਾੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਅਲੀਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਅਲੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੀਮ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਬੀਸ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੱਲੇ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਲੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੈਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਤ ਤੇ ਅਲੀਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੁਗਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ। ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਕਰੌੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟ ਮੀਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ 10 ਲੈਵਲ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਬੀਆਬਾਨੋਂ ਕੇ ਹਮਦੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ, ਉਹ ਤੇ ਉਨਕੀ ਕੁੱਟੀਆਂ से बढ़ गई। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਗਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਮਾ ਅਸ਼ਦ ਅਲ ਕਫਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਗਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਗਾਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਗਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। एक गलती का ਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। 12 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਮਰੀਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ क्या कहना चाह रहे हो कि मिर्जा साहब ने अपनी गलती का अजाला किया, अगों फिर उन्होंने पुत्र ने उन्होंने गलती का अजाला किया, तो गल किहदी मन्नी जाएगी? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब दी, ना कि मिर्जा साहब दी। तुसीं यही कहानी करदे हो, रोज आके ना लोकां नूं दस दिओ मिर्जा साहब ने यह किया, जबकि उन्होंने पुत्र ने उन्होंने बयान के बारे यह किया उन्होंने मरण तो बाद। तो लिहाजा गल किहदी साबित हुई? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद दी, उन्होंने प्यो दी नहीं हुई। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਯਾਰ ਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ गलत कह रहे हो गाहे मैं नहीं ਕੀਤਾ किया ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ टोन पे लो मैं मिर्जा ठीक साहब है ने मैं जिस फिर गलती का अजाला किया है वो इसी गलती का अजाला किया है कि लोग मेरी जानिब जाहिल मुखालिफ जिस तरह के ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾनिब ये बयान मंसूब करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ भाई मिर्जा बशीरुद्दीन सुन ले एक बात आज सुन ले अमर नजीर साहब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की कोई भी स्टेटमेंट जो उन्होंने हजरत साहब के मरने के बाद दी कोई भी वो नबी थे वो ये थे उनको पहले पता नहीं लगा उनको बाद में पता लगा उनको पता नहीं लगा मुझे पता लगा सब गलत हैं कोई काबिल कबूल नहीं है स्टेटमेंट वही मानी जाएगी जो मिर्जा साहब की थी ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ 19 20 21 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 40 ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ मेरा भी हक है मैं जवाब देवां या तुसा कल्ले ही करने मैं ये नहीं किया जो कोई तुसी कह रहे हो कि गलती दी अजाले दा अजाला कीता मैं ये किया कि मिर्जा साहब ने तो रसाला इस गले लिखिया है कि अपने मुरीद दी गलती दा अजाला कीता जाए हालांकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਕੌਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਏ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1901 ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਲਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਣ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਦੇ ਆਖਰ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਗਲਤ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ 2 मिनट नहीं तुसी चल सकते हैं जरूरत ही नहीं मैंने आपको सिंपल मिसाल दिया है आप आज बहुत हो जाए और आपके दावे के ऊपर एक और दावा आपका बेटा बताया कि मेरे बाप को ये नहीं पता लगा था हासिल में मेरे बाप को ये था मेरा बाप नबी था वो खुद को कह के चला गया मैं मुजद्दद हूँ ये गलत कहता था मेरा बाप उसको पता ही नहीं लगा अगर मैं यहाँ पे बैठ के भाई आप मौका तो देना मैं यहाँ पे बैठ के आमर नजीर ने जो मुजद्दद होने का दावा किया था वो गलत था उसका बेटा जो 20 साल के बाद बता रहा है मेरे वालिद का दावा नबूवत था ये ठीक कह रहा है बिल्कुल मैं बताता हूँ ना उसकी वजह मैं कह रहा है ये लड़का क्योंकि मैंने कर लिया मिर्जा साहब को झूठा नबी साबित ओ भाई मुझे जवाब तो दूंगा जो बाद में आई है हौसला तो करें ना फीस शेख साहब दूसरे को भी बोलने तो दें 2 मिनट का मैंने टाइम मांगा है आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ असल बात ये है अगर मैं बोंगियां मारता मारता मर जाऊं सुबह के टाइम कहूं कि मैं मदय्य नबूवत पे लानत भेजता हूं शाम के टाइम पे कहूं कि मैं इस मानी से नबी और रसूल हूं इस तरह से मैं नबी और रसूल हूं उस तरह से नहीं हूं इस तरह से हूं जो मेरा बेटा आएगा वो इन बोंगियों को आपस में तरतीब तो देगा ना कि पहले मेरा बाप ये कहता था बाद में ये कहता था इनमें तरतीब क्या रबत क्या है ये रबत कायम किया है उसके बेटे ने और क्या जुल्म किया है अगर ये रबत ना कायम करे तो उस बंदे को पागल मानना पड़ता है जो सुबह के टाइम कहता है मैं लानत भेजता हूँ मुदय्य नबूवत पे उसको मुसलमा कज़ाब का भाई मानता हूँ शाम को कहता है हम नबी और रसूल हैं उस बंदे को फिर पागल मानना पड़ेगा उसके बेटे ने जो रबत कायम किया है ना हम उस रबत को दुरुस्त मानते हैं इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है या उसको पागल मानो या उस रबत को मानो 2 ही रास्ते हैं अब बताएं आपने क्या मानना है एक शख्स जिसको मैं आपको अल-फज़ल अखबार से साबित कर दूं कि वो 7वीं के इम्तिहान में फ़ेल हो रहा है 8वीं के इम्तिहान में फ़ेल हो रहा है 9वीं के इम्तिहान में फ़ेल हो रहा है 10वीं के इम्तिहान में फ़ेल हो रहा है और वो बता रहे हैं कि जी हम इसको सिर्फ इसलिए अगली प्रमोशन दे देते थे कि ये हज़रत साहब का बेटा था काबिलियत और जहानत का अंदाज़ा तो यहीं से हो रहा है ना कि वो बला का ज़हीन इंसान था बला का
यानी उसकी काबिलियत की आपका बच्चा छठी में भी फेल हो, 7वीं में भी फेल हो, 8वीं में भी फेल हो, 9वीं में भी फेल हो, और दुनिया उसको कहे कि ये भला का ज़हीन बच्चा है आमर नज़ीर साहब का। दूसरा बच्चा जो आपका वो फर्स्ट डिवीजन लेके पास होता रहे, उसको बताएं कि इसको छोड़ दो, ये जो मेरा बच्चा लगातार मसलसल फेल हो रहा है ना हर इम्तिहान में, ये भला का ज़हीन है। जब ये आपकी मेंटल लेवल ये होगा तो फिर आप इस किस्म की बातें करेंगे। ये उन्होंने खुद लिखा हुआ अपने अल-फज़ल में, हर इम्तिहान में तसलसल के साथ अब फेल सुने होते जवाब रहे। इसका, अब सुने जवाब मैं इसका देने लगा हूं, लेकिन क्योंकि वो लाशें हैं, उनमें से तो कोई इतने जोगा है नहीं कि वो आपको आके जवाब दे। सिद्धू मूसेवाले ने अपने नामी क्लास के रिपोर्ट कार्ड में 3 को 8 बनाया हुआ है, 1 को 9 बनाया हुआ है, 5 को 6 बनाया हुआ है, खुद मान रहा है इंटरव्यू में। लेकिन नामी में फेल होके रिपोर्ट कार्ड में हेरा फेरी करके इसका ये मतलब साबित नहीं हो गया कि वो डल माइंडेड बच्चा था। वो इतना ज़हीन था कि बिल बोर्ड पर उसका नाम बोला है, जाके देखें, बिल बोर्ड पर उसका नाम बोला है। और जो वो टुपाक था ना, टुपाक के मानने वाले इस बंदे के साथ इसको उसकी बराबर खड़ा किया उन्होंने, पूरे अमेरिका ने। इसका ये मतलब नहीं कि एक बंदा 7वीं में फेल हो गया है, 9वीं में फेल हो गया है तो वो सारी जिंदगी फेल ही रहेगा, आगे जाके वो शार हो सकता है। आगे जाके तो उन्होंने कोई भी तालीम हासिल अहमद फेल हुआ होगा आगे ਆਮਰ ਭਾਈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मिर्जा मसरूर तो साहब साहब है शेख साहब को एक मिनट नहीं जड़ना होना। शेख साहब मिर्जा ने मसरूर साहब की वीडियो है अपना आमर भाई, मिर्जा मसरूर साहब की वीडियो जो मैंने खुद देखी है। बच्चों ने पूछा कि प्यारे हजूर अपनी तलीम के बारे में कुछ बताएं। हजूर फरमाने लगे, जैसे आप कह रहे हैं कि बाद में बंदा चेंज हो जाता है। प्यारे हजूर ने फरमाया कि मैं 10वीं के पेपर में जब मैंने दिए तो मेरे पेपर ठीक नहीं थे और मुझे डर था कि मैंने पास पूस नहीं होना। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, उस दुआ का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने सारे का सारा, और ये अल्फाज हैं जी मिर्जा साहब के जो मैं अभी बोलने लगा हूँ। मिर्जा मसरूर साहब ने दुआ की है, 10वीं के पेपर सही नहीं दे के आए, तो अब वहां तो कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह को आके बताया कि मैं दे के नहीं आए। अब मिर्जा साहब के अल्लाह ने क्या किया, वो कह रहे हैं कि वो सारा निजाम पलट दिया छोटे छोटे बच्चों के सामने। सारा निजाम पलटने का मत, मेरे लिए सारा निजाम पलट दिया, मैं पास हो गया, मेरी वजह से दूसरों का भला हो गया। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ उन्होंने बात क्या की है। इस तरह बात इसी तरह है, लेकिन आप उसको गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। वो उन्होंने एक पेपर की बात की, कोई एक पेपर था मैथ का, कर ले चले, मैथ का पेपर था जी, उसमें इस तरह वो मेरा ठीक नहीं हुआ था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसमें पास हो जाऊंगा। लेकिन वो पेपर समहाउ उन्होंने कुछ इस तरह का बनाया था जो आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस था या मुश्किल था। तो उस वक्त की जो महकमा तालीम था, उन्होंने फैसला किया कि हर किसी को एक्स्ट्रा, हर किसी को, मिर्जा मसरूर अहमद साहब को नहीं, हर किसी को एक्स्ट्रा 10 नंबर दिए जाएंगे। जितने भी वो लेगा, 20 लेगा तो 10 दे देंगे, 10 लेगा तो 20 देंगे, 30 लेगा तो उसको 10 देके 40 करेंगे। तो वो जो 10 ग्रेस मार्क मिले उससे मैं पास हो गया, ये कहा उन्होंने, और लोगों का भी भला हो गया। यानी अच्छा, कई लोग अब मेरी बात सुन, अब मेरी, क्योंकि मिर्जा साहब को ना पेश करें, आप तरोड़ मरोड़ के ना पेश हाँ करें। जी, मिर्जा साहब ने भाई एक मिनट, चौधरी साहब एक मिनट, मिर्जा साहब ने हर इश्तिहार के आखिर में इनाम रखा। अगर उन्होंने 10 मार्क, अब ग्रेस मार्क से हट गए, आप ओ बाबा ग्रेस मार्क से हट गए आप। ओ बाबा बात तो सुन ले। अगर उन्होंने ये कहा हो उस वीडियो में, आप लोग यहाँ पे आके ना गलत बयानी करते हो और लोगों को जो आपके साथ लगे उनको गुमराह करते हो। यार बात तो सुन ले प्लीज। आमर नज़ीर साहब, पहले इन्होंने आया पूछो कि इन्होंने गलत बयानी क्यों की थी। सर मैं गलत बंदे जवाब देने लगा, सर मैं गलत बंदे जवाब देने लगा। सारा निजाम उलट दिया और मैं पास हो गया, ये इन्होंने क्यों जुमला, ये क्यों इन्होंने कहा। सर मेरी बात सुन लें, अभी फैसला कर लेते हैं, अमर भाई इससे पहले ही कर लेते हैं। आप वो वीडियो यहाँ पे चलाएं और $2,000 का नाम रख लेते हैं। रखें, आप इनाम रखें, मैं दूंगा, आप रखें। और नहीं लगाएं, अभी आपने पेश किया है, आपने पेश किया, अभी निकालें। उन्होंने कहा जी मैं पेश किया है, दावेदार आप हैं। मैंने जो पेश किया वो अल्फाज वहाँ पे हैं। आपने झूठा दावा किया है। वो सारे अभी वीडियो देखें यूट्यूब पे, इतना सिर ना खाएं। साहब को वो वीडियो भिजवा दूंगा, उसके बाद अभी चलाएं,
ना उसके अभी चलाएं। नहीं, मैं नहीं अभी चला सकता। मैं आपने ओए कहा अभी आप चलाएं, $2000 लें, $2000 लें मिर्जा साहब के इश्तिहार की तरह। आपने वीडियो पेश किया है, मैं क्यों चलाऊं? सर आपने वीडियो की तरदीद की है हाँ तो मेरे मैंने किया, बयान तो की, मुझे तो झूठा साबित करें ना चला के अभी। तो मैं ठीक है, मैं आपको चलाने नाम लगा दे हूं, रहा देखो हूँ। अभी इसको झूठा साबित करता हूँ। हाँ करें तो साबित। करें। मैं वहाँ क्यों करूं? कादियानी पीर मिर्जा मसरूर, अहमद नजीर साहब, आप कादियानी बताइए। मलंग मलंगनियों के बच्चों के सामने ये कह रहा है कि पेपर मेरा खराब था, अहमद नजीर साहब मुझे और बताएं। मेरे पेपर को सही करने अहमद के लिए नजीर अल्लाह ने साहब, पूरा निजाम ही बदल दिया। अहमद नजीर साहब, अल्लाह ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ऐसा ਵੀਡੀਓ जाहल ਕਿਹਨੂੰ पीर ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ है। ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਿਨੇ ਕਹੀ ਹੈ देखो ਵੀਡੀਓ? एक पीर झूठ पिया बोलता है कि वीडियो मेरा पेपर ठीक वीडियो नहीं होया, मैं किसी काम जो का नहीं सा, अल्लाह ने वीडियो पूरा किसको निजाम ही पेश बदल करनी छड़िया। चाहिए? वीडियो किसको पेश करनी चाहिए? आपने आके आपको सुनाया ना किस्सा वीडियो का, मैंने तो नहीं सुनाया। आपने सुनाया ना, आप चलो पेश करें। यहाँ ही मैं रहना, शेख साहब एक मिनट यहाँ ही रहना, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, हाँ, यहाँ करें रहे। करें 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 करें। हाँ चलें जी, इनको जाने ना $2000 देना, मैं लेके आता हूँ। $2000 फिक्स हाँ, देना करो मैं $2000, ठहर जा, मैं चलाने लगा। उसमें ग्रेस मार्क्स का अगर हुआ ना, तो फिर ये ना कहना कि मैंने ये जितने अल्फाज मैंने तो यही कहा था, आपने देखें, सुना नहीं। मैंने जितने अल्फाज बोले थे, आपने इतने ही बोले हैं, आपने अल्फाज जो बोले हैं वो सुन लें। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने अल्फाज बोले हैं, चलें अल्लाह ताला ने आप जाए तमाम ना, निजाम आप उल्टा यहाँ कर वेट दिया और मैं पास हो आप गया। जाए ना, आपने ये आप जाए अल्फाज ना, वेट बोले करें, हैं, वेट आपने करें, ये वेट करें, वेट करें, वेट करें। आपने अब मैं वेट कर रहा हूँ। आपने अल्फाज ये बोले हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम जो निजाम बोले उल्टा हमें कर याद दिया। है, हमें ना बताएं। आपने दोनों ने जो जो लफ्ज बोले ना, हमें याद है। खामोश हो जाएं, वीडियो सुने बस। अब आप बात दोनों ना करें, म्यूट करें इनको दोनों को। जब वीडियो आ जाती चौधरी साहब तो अनम्यूट करके वो वीडियो प्ले। पहले बात करते हैं, बात के अंदर बात करते हैं, झगड़ा शुरू करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब वीडियो प्ले करें। वो वीडियो प्ले करने लगे हैं तो कहते हैं नहीं नहीं तुमने ये नहीं लफ्ज बोले, वो बोले। भाई जो नहीं, कुछ बोले उन्होंने- हमने सुने, हम बहरे हैं, हम गूंगे हैं, थत्ते हैं, हमने सुन लिया आपके भी अल्फाज और उनके भी। खामोश हो जाए। आप उन्होंने वीडियो जो कुछ लगाइए। बोलते हैं वो हमने सुन लिया। अभी पता लग जाता है वीडियो आती है तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। सिर्फ मुसलमानों को ठीक है, जी। मुसलमान जितना कर लो, जिदा जिदा शनाख्ती कार्ड है तुम ला लो, नंबर ला लो, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਐ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ नहीं है। लो जी, मैं वीडियो ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने की। मिल जाती आराम से ले आए, कोई मसला नहीं। आप बेशक बराड़ से उतर कर जाकर ले आए, लेकिन जो हमने आपसे नहीं, लफ्ज सुने, मैं दूसरे फोन पे ढूंढ रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अगर वो अल्फाज सेम उसमें मिल गए तो फिर रफी शेख साहब से हम खुद बात कर लेंगे, क्योंकि हमने सुन लिया, आपके भी अल्फाज सुने, उनके भी सुने। वीडियो सुनने दें आप बस। 2 मिनट नहीं आराम से बात कर सकते यार। अगर बंदा आपको टोक देता है तो आप चुप कर जाए कि भाई चल ठीक है यार, तू कर ले, जो तेरी मुक गई मैं ता कर लूँ। फिर दूजी बारी तीजी बारी मौका दो अगले बंदे। अगला बंदा बार बार नहीं आपको बात करने दे रहा, तो जो नीचे बंदे सुन रहे होते हैं ना, वो भी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बड़ा ही बदतहजीब आदमी है। उसने एक दफा मिन्नत की है, दूसरी दफा मिन्नत की है, तीसरी दफा ये चुप ही नहीं कर रहा, बीच में उसको टोकी जा रहा है, टोकी जा रहा है, टोकी जा रहा है। अच्छा, तहजीब हूँ, वो तो तहजीब वाले हैं ना। नहीं आमिर भाई, ये पहले ठीक थे शेख साहब, अभी जो है पता नहीं इनको क्या हुआ है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, ये ना थोड़ा टोकते भी हैं, और मतलब वो गाली वाला लफ्ज मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ये आपने 2-3 दफा टोका है, मैंने आपकी मिन्नत की है, फिश मुझे बात कर लेने दें। नहीं करें, आपकी मैं आपने सवाल मुझे का जवाब- तहजीब कह दी है, आपने मुझे तहजीब कह दिया, मैं मान गया हूँ। लेकिन आप ह्यूमैनिटी आपको ये भी बताएं, आपको पता है ना अमन मैंने नजीर मैंने एक बात की है अभी शेख साहब, मैंने आपको दूसरा कहा था, उनको ह्यूमैनिटी एक अमन नजीर साहब बराए मेहरबानी आज एक फैसला करें। आप मुझे बताएं, ठीक है मेरा लहजा तल्ख हो जाता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं कि मैंने आज तक आपको गालियां या आपने मुझे गालियां दी हैं? नहीं गाली कभी मैंने कहा है आप गालियां देते हैं? ये मैंने कहा ह्यूमैनिटी कहता है कि ये गालियां देने लग जाएगा, ये इसकी आदत है, ये गालियां देने लग ये जाता है। मैं गवाह पेश कर रहा हूँ, और फीस साहब भी ये मुझे बता दें, अमर भाई हबीस कहना किसी को मुसलमान मेरे को, सामने इन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, खबीस भी ये कोई खुद इतनी बड़ी मान गाली जाते नहीं है। हैं। अमर भाई ये खुद मानेंगे कि मैंने तो हबीस यार यहाँ पर जो टाई राड मुसलमानों के खुले हुए हैं,
गैर मुसलमान के खुले हुए हैं। खबीज को इतना बड़ा वहां पे काउंटी में 1 मिनट आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे गालियां दी हैं हफीज शेख साहब ने, इन्हें कहे मेरे सामने इनकार करें। हाँ लाएंगे, मैंने आपको गालियां नहीं मैंने दी। गालियां जो होता है ना वो होता है तेरी मां नू, तेरी भैन नू, तेरी फलान नू, तेरे टमकान नू। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਬੀਸ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ। हफीज भाई आपने बोला गाली, तो फिर आमर भाई से आप फैसला करा लेते हैं। हबीज कहना मतलब खबीस आपने कह दिया कि खबीस कहना कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा यार बस करो यार, बस करो। कोई ऐसी बात नहीं ठीक है। हो, अगर ठीक हो। एक शख्स झूठ बोलता है मैं उसको कहता, इन्होंने भी लफ्ज इस्तेमाल किया था खबीस, उसके जवाब में मैंने किया था, ये भी याद रखो। चलो शेख साहब कोई मुश्किल नहीं है, बस इस चीज ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁਮੈਨਿਟੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। Humanity ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਲੀਏ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇਦਹਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। अमर भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ। जी जी ठीक है। मैं भी जरा नीचे उतरा था, अभी आया हूँ मैं। आराम से बात करें सब लोग, हौसले से बात करें। गालम गलोच तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन टोका टकाई जो होती है ना वो गालम गलोच की तरफ ले जाती है बंदे को। एक बंदा बात कर रहा है, उसको आप बीच में टोकेंगे, हो सकता है वो इरिटेट होकर वो गाली दे दे, पता तो नहीं ना होता। 1 बार 2 बार बेहतर है कि अगले का तरला मिन्त कर लेंगे, यार बारी बारी बात करते, आप भी अपनी बात कर लें, मैं भी अपनी बात कर लूं। आप अपने टाइम में करें, मैं अपने टाइम में करूं। मैं आपको नहीं टोकता, आप मुझे ना टोकें। टाइम बराबर रख लें। ये तो नहीं है कि आप 5 मिनट बोलें, 10 सेकंड बोलूं आप मुझे टोक दें, या आधा मिनट बोलूं तो आप कहें नहीं यहाँ गलती वहाँ गलती। अल्लाह 1 मिनट में है बस। वैसे भी गाली नहीं देनी चाहिए, गाली देना बुरी बात है। लोग आपको मिर्जा समझेंगे तो गाली मत दो। लोग आपको वो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी भी तो समझ सकते हैं। नहीं मिर्जा समझेंगे, क्योंकि वो किताबों में भी गालियां देता है ना। ह्यूमैनिटी क्यों म्यूट कर रहे हो मुझे? देखो आप किसी के कादरी का नाम ले रहे हैं साहब, तो आप क्यों उनका नाम ले रहे हो? यार एक सेकंड, हफीज शेख साहब ये तो वो बात हो गई। सिद्धू साहब मैं आपसे ना बात कर रहा हूँ ना मैं आपकी किसी बात का जवाब दूंगा। मैं ये अब आपको सिद्धू साहब कह के कह रहा हूँ, ये मैं आपको बड़ा करता हूँ, आप दिखाएं मुझे कहाँ जवाब दूंगा ना मैं इमाम अहमद रजा हाँ बरेलवी ने गालियां दी हैं, मुझे इधर दिखाएं। मैं आपको मिर्जा साहब की गालियां आपसे बात नहीं कर रहा सिद्धू साहब। आंटी जेडी गल होनी तेरे लग लेंदे नवा ना कट्टा खोल दे। चलो पुरानी गल कर लो यार। ह्यूमैनिटी ने हजरत ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ? ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲੈ ਸੁਨਤ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 12 ਇਮਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ। ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਕਲਾ ਨੇ ਆ ਜਾ 12 ਇਮਾਮ ह्यूमैनिटी चुप कर जा, खुदा दा ना ही है, गल नूं किधर दा किधर लै गए, वास्ता ही रब दा, तू भी चुप कर। ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਲਾ ਨੇ ਆ ਜਾ ਮੁਕੀਏ। चम छोइला जबा जबा चम छोइला। हफीज शेख साहब मेरे साथ कुछ रुकना है आपने? हफीज शेख साहब अल्लाह अकबर, सिद्धू भाई ना करो। ਹੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।
तो सवाल मेरा उत्थे ही है कि ये गलती का अजाला मिर्जा साहब ये गलती का अजाला जरा कीता है उस किताब तो पहले पूरी एक किताब 12 सफ़ियां की लिख दी थी। उस तो पहला जेडे जेडे मिर्जा साहब ते ईमान रखते सन और उस दौरान फौत हो गए, वो बेहदायते फौत होए कि दायते फौत होए? मिर्जा साहब ने किसी का किया कि फलाना फलाना बंदा मेरा बेहदायत है? तो ये गलती का अजाला क्यों लिखी? एक जो उन्होंने लिखी ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹਦਾਇਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨਜਫ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਜਫ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਜਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਜਫ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ? यो अमर भाई बड़ा समेट के मिर्जा साहब ने तो कोई ऐसी गल नहीं, मिर्जा साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि जो मर गए हैं और जो उनके अगर उनके ज़हन में ये गलती थी उन्होंने इसका अजाला नहीं किया तो लिहाजा वो जहन्नम में जाएंगे। उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। तो उनसे अगर वो गलत हमको नहीं समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको मैं कोई बात समझाऊं तो एक आपको नहीं समझ आई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गुनाह सरजद कर दिया उस बात को ना समझ के अब जहन्नम ही आपका ठिकाना है। ऐसी बात तो नहीं हो सकती ना। नहीं हो जाता है, हो जाता है। अकीदे की बात हो ना, अगर एक बंदा है वो दो खुदा मानता है, उसकी गलती है, उसकी गलती का अजाला किया जाता है, उसको बताया जाता है कि तेरा एक ही खुदा है, दो खुदा नहीं है। अब उससे पहले उसके साथी अगर दो खुदा मानते मर गए हैं तो वो तो गए जहन्नम में। ये सवाल जेन्युइन है कि अकीदे का सवाल था, अकीदे का मसला था। बहुत बड़ी गलती का मिर्जा साहब ने अजाला किया है, लेकिन जिन लोगों की गलती का अजाला नहीं हो सका 1901 से पहले, वो मिर्जा साहब के बकौल गलती पर अगर मर गए हैं तो उनका क्या बनेगा, ये वो पूछना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जमात में बाज साहब जो हमारे दावे और दलाइल से कम वाकफियत रखते हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हमारे साहब का है, कोई उनके लिए कोई लफ्ज़ कोई बदतमीजी वाला या कोई ये जाहिल, और यानी वो आखिर में आप लोगों के लिए इस्तेमाल किया है। अपने लिए क्या कहा है? हमारी जमात में बाज साहब जो हमारे दावे और दलाइल से कम वाकफियत रखते हैं। समझ आ गई ना? और आप लोगों के बारे में क्या लिखा है वो भी सुनिए। अब इस तमाम तहरीर से मेरा मतलब है कि जाहिल मुखालिफ, अपनी जमात का बंदा तो मुखालिफ नहीं ना हो सकता, उसके पास इल्म कम हो सकता है, वो कह रहे हैं कि कम वाकफियत रखते हैं, उनके लिए वो साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन लें, अब सुन लें, बीच में ना टोकें। और आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि मेरे जाहिल मुखालिफ, उन्होंने ये नहीं कहा मेरी जमात में मौजूद मेरे मानने वाले जाहिल मुखालिफ। जाहिल मुखालिफ कौन है? आप लोग, हम लोग। हाँ जी। और अपनों के लिए क्या कहा कि बाज साहब जो हमारी जमात में हैं, बाज साहब हम मुखालिफ जाहिल हैं। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। नहीं, आगे भी पढ़ दे। मैंने तो ये बताया कि दोनों में फर्क कर लें। आगे पढ़ो, आप पढ़ो। दोनों में फर्क कर लें। हमारी जमात में बाज साहब जो हमारे दावे और दलाइल से कम वाकफियत रखते हैं, कम मतलब उनको पता है इसको कितनी दफा पढ़ना है, तो फिर कितनी दफा पढ़ना है? तो आगे नहीं पढ़ना, आगे पढ़ो। आगे क्या लिखा हुआ है? किधर आगे? इसके आगे मुखालिफ हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इससे आगे पढ़ें कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। मैं इस तौर से जो वो ख्याल करते हैं, ना नबी हूं और ना रसूल हूं। हाँ, मैं इस तौर से नबी और रसूल हूं जिस तौर से मैंने अभी बयान किया है। हाँ, अब समझ। एक मिनट चौधरी साहब एक मिनट। इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ, इस तौर से मैं नबी और रसूल। आप मिर्जा साहब को इस तौर से नबी और रसूल मानते हैं? मेरी तस्वीर परे करो यार। एक मिनट चौधरी साहब म्यूट करो। चौधरी साहब एक मिनट है, जो चलाने हैं। चौधरी साहब एक मिनट बोल रहे। हाँ जी, इस तौर से आप मिर्जा साहब को नबी और रसूल मानते हैं? जिस तौर से उन्होंने वजाहत की हुई है ना, वजाहत पहले मुझे आप बताएं ना
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طور سے میں نے ابھی وضاحت کی ہے، وضاحت آپ مجھے بتائیں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ ان کے مرید، وضاحت آپ انہوں ان نے کو اس یہی طور سے کی ہے، وضاحت انہوں نے یہی کی ہوئی ہے کہ میں نے جہاں جہاں خود کو نبی یا رسول کہہ کے پکارا ہے اس سے میری مراد محض مجدس اور محدث ہے، اس سے مقدس اور زیادہ کچھ محدث، نہیں۔ اور اگر ٹھیک ہے، اس لفظ نبی، اس لفظ، اب میں وضاحت پیش کر رہا ہوں، آپ نے نہیں کی، اب سنیں، اس لفظ ہاں نبی کے استعمال سے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو میری جانب سے اس لفظ کو کٹا ہوا اور مسترد سمجھیں، اور اچھا اگر غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو ہم وہ اس طور سے انہوں نے کہا ہے، یہ ہے ٹھہر وہ جاؤ نا، طور، ٹھہر جاؤ۔ یہ ہے وہ اگر طور، وہ وہ کہتے کٹوا ہیں دیا تھا، اگر ہاں وہ کٹوا دیا تھا، وہ 1892 فروری کی بات ہے، یہ جو رسالہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جاہل مخالف مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو 1901 میں لکھا۔ اب تو اور وہ میرے بات ختم، اب بھائی تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس عامر طور سے میں نذیر نبی صاحب، اور رسول ہوں۔ اگر آپ نے مدتوں پہ جانا ہے نا کہ جی یہ 1891 حضرت صاحب کی اپنی وفات سے 19 گھنٹے پہلے، وہ بھی 1900 چیک کر سال، لیں گے، اب اب 19 اب گھنٹے آپ بھی کو چیک اب کر آپ لیں کو گے۔ اب آپ کے پیٹ ہاں میں وہ درد ہونے تحریر لگی، لے آئے نا، میں لے وہ آؤں گا، تحریر وہ پڑھے اخبار عام میں بھی پہلے، ہے، وہ یہ اخبار عام میں، وہ پہلے بدر یہ میں جو بھی آپ، ہے، اخبار عام میں یہ تو بھی ہے، سنیں نا، بدر میں بھی ہے۔ سنیں تو صحیح نا فی شیخ صاحب، وہ جو آپ کہتے پڑھ ہیں، رہے ہیں، ہاں تو جو پھر آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ایک، مطابق آپ مانتے ہیں کہ اس طور سے آپ ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس سے مراد میری جو بھی مجدد اور وضاحت محدث ہے، کی ہے، جو ہم ان کو وضاحت مانتے ہیں، آپ اپنے، میری بات تو سنیں نا بس یار، جو بھی وضاحت کی ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ غلط جب وضاحت کی ہے یا صحیح وضاحت کی ہے؟ جب انہوں نے مرزا نہیں، صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں، اس طور سے آپ ان کو نبی اور ہاں رسول طور میں نے مانتے بتا ہیں؟ دیا، آپ نے نہیں بتایا، طور یہی ہے، ٹھیک ہے، بتا دیا، ہاں طور میں نے اور بتا جو دیا۔ بھی ہے یار، طور مجھے اس سے کیا لینا دینا، جڑے بھی طور ہے نا، اوے اس طور تواڈے سے آپ ان اولیاء، کو خدا نبی اور دا رسول نام لو مانتے ہیں؟ امن جب تواڈے اولیاء بھی کہہ گئے نے میں نبی ہوں تے میں رسول ہوں، میں نہ محمد ہوں، یار، بلکہ انج محمد نہ سے بھی کرو اونچا پھر میرا شیخ صاحب، جھنڈا ہے۔ ساڈے اولیاء میں کہہ رہا کیوں ہوں نہ جو کہیے، مرزا صاحب نے کیوں کہا، تواڈے اس اولیاء طور جڑے سے تواڈے اگر اولیاء ساڈے جڑے کسی نے، ولی نے یہ ہاں کہا ہے، سب اگر کچھ کہا میری آپ کے گل سن ولیوں لو، نے، میری گل سنو، اگر ساڈے کسی ولی نے یہ آخیا ہے کہ میں چپ کے اس اسی طور دیوار سے نال نبی اور مارنے ہیں، رسول ساڈے ہوں، اس سے جت نہیں ہے، سن تو لو، اسی نہیں مانتے، سن تو لو، یہی کہنا جی اگے۔ ہن سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ اگر ساڈے کسی ولی نے کیا ہے کہ میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں، تے اسی انہوں بھی اتنے کھڑا کریں گے، تسی ਉਹਦੀ تحریر پیش کر دیو۔ لیکن مرزا صاحب نے ایسا جڑا تسی صفحہ کھولے ہے، یہ تو کیا میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں، اس طور سے آپ ان کو نبی اور رسول اب مانتے ہیں کہ نہیں انہوں آگے مانتے؟ کہا ہے ہاں یا نہ؟ جس طور سے میں نے ابھی وضاحت کی، آپ مجھے بتائیں، وضاحت کریں جس طور سے ابھی میں نے یار کہا ہے، وہ آپ پڑھ لیں نا، طور وضاحت آپ نے آپ پڑھ بیان لیں، کرنا ہے، وہ وضاحت آپ پڑھ لیں، ہیں تو وہ تو نبی میں اور نے تو رسول کر نے دی ہے، بقول ان کے میں نے تو وہ طور ہیں، بیان کر دیا، آپ کی پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نہیں ان کو طور سے، حقیقی رنگ میں اس نبی طور مانو۔ سے شیخ آمن صاحب، نذیر اس صاحب، طور سے آپ پتہ آپ ان کیا کو کر رہے ہیں، آپ اگر میں اور اگر آپ پاکستان میں ہو نا تو ایک بات کر رہا ہوں، میں 295 مر میں، جائیں گے، میں آپ مر کو اندر جائیں گے کروا، لوری کے سن اس لیں طور سے، نہ اس طور آمن سے ان کو نذیر نبی اور صاحب، رسول مانتے سن لیں میری بات، اگر میں اور آپ پاکستان میں ہونا، میں آپ کے اوپر مقدمہ کر دوں، یہ شخص مجھے جبرن مجبور کر رہا ہے کہ مرزا کو نبی مان، جبرن یہ مجھے مجبور کر رہا ہے، میں مرزا صاحب کو ہاں نبی نہیں مانتا کسی بھی رنگ میں، ذلی، بروزی، ہاں شرعی، غیر ہاں شرعی، حقیقی، استارہ، ہاں مگر یہ ہاں آمن نذیر مجھے فورس کر رہا ہے کہ اس کو نبی مان، میں نہیں نہیں، اس کے میں تو بغیر نہیں کہہ تیرا رہا، میں چارہ تو کہہ نہیں رہا ہوں ہے، اس کو دجال مان، میں نہیں تو کہہ رہا ہوں اس نے نہیں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے اس یہاں کو پہ دجال مان۔ آپ نے یہاں پہ بارہا زیادہ یہ دلی کہا میں ہے کھلو، لوریوں کو کہ لوری تو ہے ہی کافر، وہ تو ان کو اس کو نبی مانتے نہیں، قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ نبی مانتے ہیں، اور لاہوریے اس لیے کافر ہیں کہ اس کو نبی نہیں مانتے، نہیں 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 نہیں، آپ نے یہ لوریے اس معیار لیے رکھا ہوا کافر ہے، ہیں، میری بات سنیں نا، لوریے اس لیے کافر ہیں کہ لوریے جھوٹ بولتے ہیں، نہیں وہ کہہ بولتے رہے میں جھوٹ، اس طور سے نبی لاہوریے اور رسول ابھی میں ہوں، نے بتا دیا آپ کو، سن تو جھوٹ لیں، سن تو جھوٹ، لیں نا، وہ کہہ رہے میں اس طور سے نبی اور ہاں رسول اس طور ہوں، سے کہہ رہے ہیں آپ نا، تو کہتے وہ کسی طور نہیں طور سے بیان بھی کر نہیں رہے، ہے۔ آپ دجل کر رہے بھائی ہیں، طور میں نہیں بیان کہتا ہوں کر رہے، طور آپ کا، میں نے تو طور بیان آپ کر کا، دیا، پھر بھی آپ کی جس تسلی طور نہیں ہو سے رہی، بھی، میں طور کہتا بھی ہوں میں نے جس بیان طور کر سے دیا، بھی، طور حفیظ بھی میں شیخ نے، صاحب، امن نذیر صاحب، طور بھی حفیظ میں نے، شیخ صاحب، حفیظ امن نذیر صاحب، صاحب، جس طور بھی میں طور نے سے، بیان کر دیا، آپ یار نے نہیں جس کیا، طور سے بھی وہ کہتا ہے نا میں نبی اور رسول ہوں، آپ کہیں کہ میں اس طور سے اس کو نبی اور رسول مانتا ہوں، کہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مجدد اور محدث ہے، اور میں ان کو بھائی مجدد اور جو بھی محدث ہی مانتا مطلب ہوں، ہے، بابا آپ اس کو نبی اور رسول اس طور سے مانتے ہیں؟
मैं उनको उस तौर से पैगाम रसा मानता हूँ कि वो अल्लाह ताला का पैगाम उन्होंने हमें रसूल दिया है। नबी क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं मैं नबी मैं रसूल हूं। मानता हूँ, मैं उस तौर से हाँ बस वो मानता हूँ। मानते हैं ना, आगे मानने वाले, बस ठीक है, वो मानते हैं, मुझे उनके पे कोई इतराज आप भी नहीं झूठे है। हैं ना फिर? नहीं, मैं नहीं आप झूठा। फिर उस पर मान नहीं, आप झूठे क्यों? हैं ना। मैं वो इसलिए कह रहा नहीं मैं इस झूठा, दौर से नबी आमर रसूल नज़ीर हूं। साहब, मैं इसलिए झूठा नहीं हूँ क्योंकि हजरत साहब ने कहा है कि हाँ। अगर हजरत साहब ने कहा है कि अगर इस लफ्ज के इस्तेमाल से कोई गलत फहमी पैदा होती है तो कटा और मुस्रद समझो। मैंने उसको कटा और मुस्रद समझ लिया है, मैंने हजरत साहब की तालीम के मुखालिफ कुछ नहीं किया। ओ भाई मेरी ओ बात भाई सुने। क्या? कटा हुआ और मुस्तरद, मेरी बात तो सुने ना। एक दफा वो कहते हैं कटा हुआ और मुस्तरद कर लें, दूसरी दफा सुन तो लेना, दूसरी दफा वो कहते हैं कि इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ, इनमें तत्बीक पैदा करके दिखाएं। बेटा तो झूठा है ना, बेटा तो जानी है ना, आप सच्चे हैं ना, आप मैंने दिखाएं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जानी जो होने भी का, आपने मैंने नहीं बेटे लगाया। के बारे में कहा है कि वो हाँ, तो बेटा मैंने कहा कि सबके लिए उनका फेल इल्म हुआ, इतना नामी नहीं में था, वो फेल कोई हुआ। आलम इंसान आप नहीं थे, ये मैंने उसकी कहा। अब उसकी बातों में मेरी बात सुने ना। एक ये बार बात उसने मैंने कहा की है। ये लफ्ज नबी कटा हुआ, और सुन तो लें। एक दफा उसने कहा लफ्ज नबी और रसूल कटा हुआ ख्याल करें, दूसरी दफा कहा मैं नबी और रसूल हूँ। तरतीब बयान करें इनकी। कौन? रबत पैदा करें। मैंने आपको बता दिया कि अपनी वफात से 19 घंटे पहले जो हजरत साहब ने स्टेटमेंट दी है वो यही है कि हाँ। मेरा दावा नबूवत नहीं है, ये आखिरी नहीं statement है। मरने 19 से घंटे पहले, मतलब 19 घंटे पहले मुकर गया था नबूवत के दावे से जो 1901 में किया था। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा दावा था, मैं उससे इनकार कर रहा हूँ। तो भाई उन्होंने 1901 कहा मेरा में दावा दावा भी ही नहीं आपने है। पढ़ के सुनाया है। अभी मुकरना आपने तो दावा तब पढ़ होता के है, सुनाया। मुकरना तब होता है अमर नजीर साहब, मुकरना तब होता है कि जब मैं ये साथ इकरार करूं, हाँ मेरा दावा नबूवत था, मैं अपने दावा में नबूवत कर इकरार करता रहा हूं, लेकिन अब मैं इससे इनकार करता हूं, मेरा दावा गलत था, मैं गलती पर था। इसको कहते हैं अपनी गलती तस्लीम करना। कहाँ किया हजरत साहब ने इस तरह? अच्छा तो फिर क्यों उसने कहा कि मैं इस तौर से नबी और रसूल हूँ, क्यों कहा? उन्होंने फिर वही बात, आप जब उन्होंने वजाहत कर दी है कि इस तौर से, और उस तौर को बयान करके वजाहत भी कर वो दी है। वजाहत आपको कबूल है ना, आपको मुझे कबूल है ना? बिल्कुल कबूल उस है, वजाहत के मुझे मुताबिक बिल्कुल कबूल है वो सुन वजाहत। तो लें यार, बात तो करने दिया करें ना। उस वजाहत के मुताबिक, उस वजाहत के मुताबिक आप उसको नबी और रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? कह दिया उस वजाहत के तहत वो कहते हैं मैं मुजद्दद और मुहद्दिस हूँ, मैं उनको वो मानता हूँ। ओ भाई, वो भाई कहते हैं नहीं। मैं नबी और रसूल हूँ। नहीं, उन्होंने दसिया कि उन्होंने क्या कि इस नबी और रसूल का मतलब नबी और रसूल है ही नहीं, है ही नहीं, ਇਹਦਾ मतलब है मुजद्दद ते मुहद्दिस। फिर उन्हें क्यों आखे अगर ਇਹਦਾ मायना नबी और रसूल है ही नहीं? हाँ। एक मिनट सुन लो, ऐस अगर करके इसका क्या, मतलब सुनो भी, नबी सुन और लो, रसूल- सुन लो। ओ, सुनते लो ना फी शेख साहब, रोला ना। अगर इसका मतलब, अगर इसका मतलब नबी और रसूल है ही नहीं, तो उसने क्यों कहा इस तौर से हम नबी और रसूल हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे साथ अल्लाह ताला हम कलाम होता है, वो भाई मुकालमा होता है तो मुखातबा फिर होता नबी है, और रसूल मानो जिसके उसको। साथ फिर होता है। नबी और सुनिए, रसूल मानो। हाँ, इस चीज की भी वजाहत कर दी है, आपकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिसके साथ मुकालमा और मुखातबा होता है उसको भाई जो भी है, अरबी लुगत मुकालमा और में, मुखातबा अरबी की- लुगत में उसको ठीक है। नबी और रसूल कहते हैं। ठीक है, मान लिया। नहीं, सुन आपको लेना, मान आगे लिया। बात पूरी करने दें। अरबी लुगत हाँ। में इसको नबी और रसूल कहते हैं। इस हाँ। वजह से मैं अपने आप को, दावा नहीं है कि मैं नबी और रसूल हूं, मैं अपने आप को नबी और रसूल कहता हूं क्योंकि मेरे साथ मुकालमा मुखातबा होता है, लेकिन इससे और जो- मुराद मुजद्दद और हफीज शेख साहब जो सीधी अपने सी आप को बात है, नबी और 3 रसूल दफा आप कहता है। आमिर नजीर साहब को कबूल 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 कहें, आपका निकाह आमिर नजीर साहब के साथ हो जाएगा। अकबर खान साहब, जो बंदा ये कहता है, जो बंदा अपने आप को नबी और रसूल इस वजह से कहता है कि लुगत में ऐसे शख्स को नबी और रसूल कहा गया, वो अपने आप को इस वजह से नबी और रसूल कहता है, लेकिन हाँ अभी जी। शेख साहब उसको नबी और रसूल नहीं मानते। यार ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। हम कहते हैं कि जे नबी रसूल नहीं मानना, दजाल मान लो, हम आपके भाई हैं, आप हमारे दजल भाई। नाल काम लेंदे ने अकबर साहब। देखो या उन्होंने कहा, नबी मैं रसूल कब कह रहा मानो हूं- या दजाल मानो। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने ਉਹ कहा ਕਦੀ इस तौर ਕਦੀ से। ਕਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਦੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ- ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾ ਆਪ ਸੀ। ਪੰਗਾ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 0/0 ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੇ। नहीं, प्यार करता रहा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मेरे शेख साथ। साहब, मेरी कोई हफीज शेख दुश्मनी नहीं साहब। है सिद्धू जट के साथ, कि मेरी कोई जाती दुश्मनी है, लेकिन ठीक है भाई है मेरा, लेकिन मैं उसके साथ ना किसी किस्म की बात करना चाहता हूँ, ना सवाल के जवाब देना चाहता हूँ, कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं कोई इसको गालम गलोच करना लेकिन चाहता हूँ। उसका रिश्ता तो करवाए ना लोरी। मेरी नजदीक वो 0/0 है।
लेकिन वो कहता है मेरा लोरियों में रिश्ता करवाएं। अगर मैं उसको कुछ समझता होता तो अगर मैं उसको कुछ भाई बन समझता के होता जाओ। अकबर साहब, अगर मैं उसको कुछ समझता होता ना 0/1 भी उसकी वैल्यू होती तो मैं करवा देता, लेकिन अफसोस है कि वो 0/0 है, मैं नहीं करवा तो सकता। यार ऐसे ना बंदों को ना डिस्कस करें, छोड़ दें। आप इस तौर से मिर्जा साहब को नबी और रसूल मानते हैं जिस तौर से उन्होंने बयान किया है? इस तौर से उन्होंने बयान करके वजाहत की है कि उसका मतलब मुजद्दद और मुहद्दस है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। नबी और रसूल मानते हैं? अमर भाई मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि जिस तौर से वो कहते हैं कि मैं नबी और रसूल हूँ और उससे मुराद ये है, मैं उसकी मुराद को बिल्कुल मानता हूँ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ वीडियो ਸਾਹਮਣੇ प्ले ਸੀ। कर लें तो छड़ दो। चौधरी साहब ने वीडियो प्ले, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ अपने की ना मैं है देखा कि ਬੰਦੇ ਨੇ रोकिया चौधरी साहब ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ, ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜੀ। जी चौधरी साहब वीडियो प्ले करो, वीडियो म्यूट करो सारे बंदे, ओके प्ले करो जी। दोस्तों आवाज आ रही है? नहीं आ रही, सिफर। नहीं आवाज आ रही? वो मैंने तो नहीं आ रही, किसी ने आ रही तो दसना भाई। नहीं, दिल्ली ब्रूजी हो गई है बात। आओ मैं दोबारा करदा। कैमरा ऑन करके ला दो ताकि वेह वे लैन। आगे अच्छा कैमरा ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ आवाज? नहीं आ रही चौधरी साहब। ਐਸ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं मेरी आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਮਰ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ 2 ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ, नहीं तो मैंने 2000 दे के जाना जे। मुझे हफीज शेख साहब से एक सवाल करने की इजाजत नहीं, मैंने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना, आपका मैं किसी सवाल का जवाब नहीं ਚੱਲ देना। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬਹਿ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 2000 ਦੇ ਕੇ ਕਲਾਨਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ। ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। सिर्फ एक सवाल ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ? ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੀ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ मेरा ਇੱਥੇ सिर्फ ਬੈਠੇ एक सवाल है हफीज शेख साहब, इजाजत अगर दे दे, एक सवाल। ਪਲੀਜ਼। ਓਏ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਅੱਧੇ ਡਿਆ। ਘੰਟੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨੱਸ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਸਵਰ ਨਹੀਂ। अच्छा हफीज शेख साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद सिद्धू साहब क्या क्या बुला रहा सर्च करना हूँ, दोबारा। कहेगा जी गाली दी सिद्धू साहब को। सिद्धू साहब, मैंने आपके किसी बात का जवाब नहीं देना। ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲਾ। आला हजरत ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ना करो यार। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਚਾਲੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਆਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, मैं कोई इल्जाम लाया? मैं कह रहा हूं एक शख्स नहीं, पता क्यों नहीं, आमन नजीर साहब आपकी बात का जवाब देने लगा हूं, पता है क्यों? पता, एक आप अहमदी नहीं है ना, आप अहमदी नहीं है, और आप अगर ब्राडों पे जाके कहेंगे कि मैं अहमदी हूं और धोखा ये देंगे कि मैं तो नबी करीम की मुनासबत से खुद को अहमदी कह रहा हूं, लेकिन कहेंगे नहीं ये बात कहेंगे नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे मैं अहमदी हूं, और तासर ये पैदा करेंगे कि आप वो अहमदी हैं जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को मुजद्दद मानता है, नबी मानता है, जो भी मानता है, उस हवाले से मैं अहमदी हूँ। तासर ये पैदा करेंगे और बताएंगे कि जी मैं जमात का मेंबर हूँ। आपके पास जमात का ज़ीरो इल्म। आप ये बताएं जी मैं उधर दफ्तर में गया, मैं वहाँ बैठा, उन्होंने मुझे कहा 3 साल का चंदा किधर गया है तुम्हारा, लेकिन आप जमात से कोई और आपसे पूछा जाए उस जमात का सदर कौन है, मुझे क्या पता जी। आपसे पूछा जाए उसका सेक्रेटरी कौन है, मुझे नहीं पता जी। उन्होंने आपको लड़की भी थमा दी,
आपकी शादी भी कर दी कादियानी लड़की के साथ, उन्होंने आपसे चंदे भी लेने शुरू कर दिए, आपने बकायदा उनको चंदे भी देने शुरू कर दिए। अरे आपको नहीं पता, सुन लेना, आपको नहीं पता कि उस और जमात चले के वो सदर जो का भी क्या है नाम उसको करने दे सवाल कर दे कि नहीं, मैं सवाल। नहीं ऐसे, हाँ आप अकबर साहब, मुझे आपका पता ना कि आप खिलाफत में भी रहे हैं, आप इधर भी हैं, आप मेरे से कोई सवाल करेंगे, मैं आपको नहीं कहूंगा यार तू तो अहमदी कभी रहा ही नहीं, तू तो अहमदी अच्छा चले मेरी बात तो सुने। लेकिन अगर सुन लें अकबर साहब, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता मौजूदा खलीफा का नाम क्या है, मुझे नहीं पता जी वो जब्बा ग्रुप मुझे के तो हेड अगले कौन अगले है। वाले खलीफे का भी पता है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आप मुझे ये आपसे मैं पूछूंगा कि आप साबित करें आप अहमदी हैं, फलाना खलीफा कौन था, खलीफा सानी कौन था, खलीफा अव्वल कौन थे, और खलीफा अव्वल ने क्या किया, दूसरा क्या, आप किसी सवाल का जवाब जब ना दे सकेंगे तो मुझे पक्का यकीन हो जाएगा ना कि आप वाकई अहमदी हैं। अच्छा मैं आपकी साहब, बात वो समझ तो गया। यार सवाल दे रहे हैं बात को। जी अफील शेख अहमद साहब, यार सवाल पूछने के लिए अमन नजीर साहब, ये शख्स अहमदी नहीं है किसी भी तौर से, जो मैं हल्फन कह रहा हूँ। अच्छा चले नहीं है वो नहीं है लेकिन सवाल तो करने दे ना उसे। हाँ, सवाल करने में क्या हर्ज नहीं है नहीं, वो मैं ऐसे शख्स का जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ, मैं ऐसे शख्स का जवाब नहीं। अच्छा चले हम तो सुनेंगे ना सवाल उसका। अहमद नजीर साहब, तो जाट कर सवाल सवाल तो करना बनता है उसका। अहमद नजीर साहब, मैंने आपके सामने कभी ये शर्त रखी है कि आप अहमदी नहीं है, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मुझे पता है आप नहीं है। मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात से। भाईजान नहीं करता सवाल, आप कर लें बात आपस में। हफीज शेख साहब आपने इतनी लंबी तमीज बांध रही है मेरे बारे में, अजीब बातें। चले नहीं करता, मैं म्यूट कर लूं। आपकी वीडियो मैंने सुनी हुई है, आपकी वीडियो सुनी हुई है जिसमें अच्छा, आप झूठ बोलना ह्यूमैनिटी बात के करते सामने हैं, कह मैं रहे हैं कि इज्जत जी कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारे यहाँ पे जिसमें बैठे हैं, आप इतराफ कर रहे हैं कि जी मैंने आज तक अपना फिक्का किसी को नहीं बताया, मैं आपको प्राइवेट में अपना बता दूंगा कि मेरा क्या है, और यहाँ पे आप हर किसी को बताते हैं मैं अहमदी हूँ, जब आपने किसी को बताया ही नहीं हुआ। और अच्छा, आप यहाँ पे इनके लगाए यार अहले हदीस हैं वो, मैं बता देता हूँ यार सबको। नहीं, नहीं, बात खत्म हो गई। बात वो अहले हदीस हैं, हाँ, तो ठीक है ना, जो मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है कि वो अहले हदीस क्यों हैं, मुझे और मिर्जा साहब भी थे, इसमें कौन सा है? नहीं, तो फिर वो क्यों कहते हैं मैं अहमदी हूँ, और तासर ये देते हैं कि मैं जमात वाला अहमदी हूँ। अच्छा यार, वो जो भी कहते हैं सवाल तो यार आप ये बताएं, इसने कह दिया अच्छा, माजरत, मैं आप लोगों की अच्छी बात कर दे, मैं उसमें लड़ाई नहीं करवाना चाहता, मैं माइक म्यूट कर रहा हूं, नहीं करता। आमन नजीर साहब, अब आप मुझे बताएं, आप कहें मैं अहले हदीस हूँ, मैं जमात में जाता रहा हूँ, मैंने चंदा दिया है, 3 साल तक उन्होंने मेरी लड़की से शादी की हुई है, उन्होंने मुझे ये, मैं आपकी बात पे यकीन कर लूं, मुझे पता लग गया आप झूठे हैं। अहले हदीस भी जाके जमात को चंदा देता है, अहले हदीस से जमात चंदा लेती है, उसकी शादी करती है। नहीं होते अहले हदीस, मतलब उनमें होते हैं ना, वो भी नहीं होते, उनमें कोई नहीं होता, उनमें अली वाले भी बने हुए हैं, और मतलब दूसरे भी कोई बने नहीं हुए होता, हैं, सारे ही होते बस हैं। जब ये अहले हदीस हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं कि अहले नहीं, मर्दइयों वाले अहले हदीस हैं, बस नहीं, मर्दइयों में कोई अहले हदीस नहीं होता। आप नहीं आके मुझे बताएंगे मैं पैदाइशी यानी कि वो कहते हैं मेरा आप हदीस नहीं मुझे ऊपर आके बहुत ज्यादा बताएंगे। इत्मीनान है, तो इस तरह करके अमन वो नजीर बने साहब, आज हुए नई गल सुनिए कि अहमदियां दे विच अहले हदीस भी हुंदे ने, बरेलवी भी हुंदे ने, सुन्नी भी हुंदे ने, देवबंदी भी हुंदे ने, अहमदियां दे अंदर। ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਬਾਵਾ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਓਏ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ नहीं हुन जजा साहब ने, अमर भाई जजा साहब ने तो कहंदे ने अली मौला, अली मौला, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। खैर अमजद टोनी हो गया, अली मौला ते अली मौला ने है ने उत्थे भी। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਛਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਬਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਗਰੁੱਪ ਹਦਾਇਤ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ। वो तो फिर आमर भाई बाद में तो जंबा साहब भी आए ने ना, वो तो फिर एंड जे अच्छा आमर भाई एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ कि एक मुसलमान कहता है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ और कलमा पढ़ लवे, तो फिर वो मुसलमान हो गया ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा अगर वो खुलफा राशिदीन के बारे में खामोश रहता, ये कहता कि चलो ठीक है वो खलीफे है मैं मानना या नहीं मानता, लेकिन मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ मानना, तो मुसलमान है ना? हाँ जी बिल्कुल, मतलब कोई शर्त नहीं ना खुलफा राशिदीन ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਲੀਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਤ ਹੈ ਵੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਲਫਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੂਰ ਦਾ ਹਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੂਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੀਨੀ ਅਮੂਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਲਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਖਲੀਫੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਖਲੀਫੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਖਲੀਫੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਜਾਦ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਬਾਤਲਾ ਵੇ, ਬਾਤਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਦੋ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਬਾਰਕਫ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਸਭ ਖਲੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿੰਜ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਛੜੋ ਕਿਹੜਾ ਰਹੀ ਅਮਰ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜੱਬਾ ਡੱਬਾ ਸ਼ੱਬਾ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਹਰ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀ ਦੇ ਕੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਜੱਬਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਤਜਦੀਦੇ ਦੀਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੀਨ ਜਾਂ ਫਿਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਜਦੀਦ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਆੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਜੱਦਦ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, 50 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਸਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਮੁਜੱਦਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰ 50 ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਘੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਚਲੋ ਕੱਲ ਸੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡ ਪੈਚ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1901 ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਹਰੀਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਉਸੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੌਰ ਸੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਂਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤੌਰ ਸੇ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੌਰ ਸੇ ਮੰਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲਾ। ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਫ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਖੋਲੋ, ਮੁਰੀਦ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬ ਇਸ तमाम तहरीर से मेरा मतलब ये है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਸੇ ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮन समझदा। लेकिन हजरत साहब ने कहा अब इस तमाम तहरीर से मेरा मतलब ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत ये इल्जाम लगाते हैं। और जाहिल मुखालिफ कौन है? अपनी जमात के। अच्छा, हजरत साहब ने किड्डी वारदात कीती है भी एक लाइन च आख्या है कि जाहिल मुखालिफ मेरे ते इतराज करते ने, मैं नबूवत का दावा किया, अगली लाइन च दावा कर भी दिता है। नहीं होना इस तौर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ? ਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੌਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੌਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੌਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਭੇਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਜਾਲ ਹੈ ਦਜਾਲ। ਸੁਣ ਲੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ कि मैं इस तौर से या किसी भी तौर से नबी और रसूल हूं, वो ओडा ही वड्डा दजाल ते कज़ाब है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ इसके बाद भी नबी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर कहने नाल ते मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने क्या अकीदा नहीं, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਰਤਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਏ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗਏ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਰ के जरिए आप प्रोटेक्शन देंगे मुसलमान? अच्छा, गल तो सुनो ना, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने जेड़ी ये गल कही है कि अगर कहने से बंदे का अकीदा वाज़े नहीं होता, बिल फर्ज कहने से अकीदा नहीं साबित होता, वो गलत कही सो कि सही कही सो? मौलाना मोहम्मद अली साहब ने गल सही की है। तुसी मौलाना मोहम्मद अली साहब दा ढाल ना बनाओ, अपने बंदे की गल करो। मौलवी मोहम्मद अली साहब ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਆ। लेकिन तुसी आपको इजाजत नहीं है उनको ढाल बनाने की, क्योंकि आपकी नजर में वो शख्स मुसलमान ही नहीं है। नहीं, वो भाई अगर उसको ढाल बना सकते हैं। मिर्जा साहब के मुताबिक तो मौलवी मोहम्मद अली साहब मुसलमान नहीं है। जो मर्जी कह लें आप, वो मुझे उससे नहीं है वो मुसलमान है। नहीं, ये क्या बात है, जो मर्जी कह लें। आप कहीं नहीं, आप पूछें किस तरह। तारिक चौहान साहब देखें, मेरी आपके साथ हफीज शेख साहब, आपको पूछना चाहिए किस तरह वो मुसलमान नहीं है।
कौन? मैं तो यही इनको कह रहा हूँ, इनको कहने ये लोग तो कहते हैं नहीं है, तो इनसे पूछे। मैं आपको बताता हूँ ना किस तरीके से नहीं कि मेरी बात- मिर्जा साहब ने कहा है जो शख्स ये मानता नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप थे वो मुसलमान नहीं है। मैंने आपको तो उसकी मौलवी तहरीर- मोहम्मद अली साहब ने इनकार किया इस चीज का। मैंने आपको भेज दी उसकी तहरीर, और मैंने आमर नज़ीर साहब ਲਓ ਜੀ को ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। मैं थे अपना बयान तो ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ। ये क़यामत वाले हफीज शेख दिन तक ਨੂੰ ਇਹ इंतजार ਪੁੱਛ ਦਿਓ करोगे? ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ हफीज ਸਾਹਿਬ शेख साहब ਕਿਹੜੀ के ਗਲਤੀ सवाल ਦਾ- तो बड़ा सादा सा है। इंतजार आमन गलती नज़ीर साहब, केड़ी- मैं ये नहीं कि ਉਹ मैं तो ਗਲਤੀ तुम्हें जवाब ਕਿਹੜੀ नहीं ਸੀ? देता। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ मैंने ਮਿਰਜ਼ਾ आपको इसका जवाब दे दिया है आमन नज़ीर साहब, अगर आपको जवाब नहीं समझ आया क्या तो जवाब दिया आप आपने? वाले मैं दिन भी तक ਸਾਹਿਬ? ਕੀ इंतजार ਜਵਾਬ करें। ਦਿੱਤਾ? ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। मैं दोबारा बात दे कर दो। रहे हैं जवाब, नहीं मैंने नहीं ना सुना, इस वजह से कह रहा हूँ। मैंने दे दिया उनको, क्या आपको मैंने सुना देना, मैंने जवाब दिया। आपका जवाब नहीं सुना। मैंने उनको जो जवाब दे दिया वो उन्हें कहें आप, वो आपको सुना दें, बस बात खत्म। नहीं आप खुद सुना दें, क्या मुश्किल है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। भाई ये बड़ा अहम सवाल है कि किस गलती का इजाला उन्होंने किया। हाँ जाहिल मुखालफों की गलती का। हाँ तो जाहिल मुखालिफ कौन है? हाँ तो पढ़ के सुनाए ना वो आखिरी नहीं, आप हिस्सा मुझे जो है। बताएं, आप इस चीज को मानते हैं जाहिल मुखालिफ आमन नज़ीर साहब है? हाँ जी जाहिल मुखालिफ बात वो खत्म लोग होगी। हैं जो बस- मिर्जा साहब को शरी नबी कहते हैं। बस बात खत्म होगी। तो मिर्जा साहब ने कहा मैं जिल्ली बरूजी नबी हूँ और क्या और बयान ये करें? नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है, जिल्ली नबूवत का सिलसिला। और जिल्ली नबी जो होता है वो मुजद्दिद होता है। तो मिर्ज़ा साहब खुद 13वें थे, 12 पहले गुजर चुके हैं, 14वां अब्दुल गफ़ार जम्पा साहब आ गए हैं और ये सिलसिला जारी है। अपनी तो हमें कहानी समझ आ गई ना कि ये जिल्ली नबूवत का कौन सी जिल्ली नबूवत है जिसका सिलसिला जारी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਬੰਦ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ भाई आपको मैं मिर्ज़ा साहब की तालीम पेश कर रहा हूँ। ਸੁਣਿਆ ਵਜ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 30 पर वो कह रहे हैं जिल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। ये तो कोई जम्बा साहब की तालीम तो नहीं पेश कर रहा, तारक मिर्ज़ा चौहान साहब की साहब, तालीम पेश ये कर रहा तहरीर मैं रोज हफीज शेख साहब को भेजता हूँ जो आप उनको बता रहे हैं अब। हूँ। जी ਲੋ ਜੀ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ $2000 ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ। फिर ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ। $2000 ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾਓ, 1000 ਤੁਹਾਡਾ, 1000 ਮੇਰਾ। अमर भाई तो वजो कर देने इत्थे नहीं है। 500 ਨਾ 500 ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਉੜਕਬਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, $1000 ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ 500 ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੰਡੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਢੈਲੀ ਤੇ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ $2000 ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ $2000 ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ये तो गल समझनी कुछ आई कि असल बात है कि एक साहब आए वो उन्होंने यहाँ पे, हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है खिलाफत से, उन्होंने मिर्ज़ा मसरूर साहब की एक वीडियो का हवाला दिया, ठीक है जी, कि वो उसमें ये बयान कर रहे हैं कि जी जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान, पता नहीं मैट्रिक का इम्तिहान दिया, मेरा कोई एक पेपर, जैसे आप कह लो मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ, यानी अगर फर्ज करें मैथ के पेपर में कि जी आप समझ 10 सवाल होते हैं, हर सवाल का 10 नंबर है, 100 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने किए ही 3 सवाल 10 में से, तो मेरे कितने नंबर आएंगे अगर तीनों ठीक हुए तो? 30 नंबर आए ना मेरे, जी जी, जबकि पासिंग मार्क्स हैं 33। यार उन्होंने इतनी डिटेल में उन्होंने ये कहा कि मैंने जितना किया था ना उससे मुझे पता था कि मैं पास नहीं होऊंगा, ठीक है, मैंने नहीं पास होना इसमें, क्योंकि अगर मैं 10 में से 10 वालों में से 2 करके आऊँ, मुझे पता ही होगा यार 20 आएंगे 20 तो मैं पास होना ही नहीं, सही भी हो गए थे, मैं फेल ही हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि जी मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि भाई मैं मतलब इसमें मैं पास हो जाऊं। अब पता है कि जी मैंने उतने सवाल नहीं किए हुए और नंबर भी पासिंग मार्क्स 33 है, मैं करके आया हूँ 25 नंबर का 20 नंबर का, ठीक, अगर वो पूरे आ भी गए तब भी मैं पास नहीं होऊंगा, 33 नहीं आने लगे। तो मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि भाई मुझे इसमें पास कर दो। तो हुआ क्या, वो पेपर जो था समहाउ आउट ऑफ सिलेबस, उसमें से कुछ क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस। तो जब वो उसका रिजल्ट इम्तिहान का तैयार हो रहा था तो वो जो उस वक्त का बोर्ड या इंतज़ामिया थी उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि ये मैथ के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लिहाजा उसका खमियाजा ये है कि हर इम्तिहान देने वाले को हर 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, चाहे वो 50 लेता है उसको तब भी 10 मिलेंगे, 10 नंबर लेगा उसको 10 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 20 हो जाएंगे उसके। तो इस तरह ग्रेस मार्क्स हर किसी के लिए अनाउंस कर दिए गए। मेरी गल हकीम साहब गलते कर लें जो हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। तुम सीना ओ दिल बरमाने दो, ये दर्द रहेगा बन के दुआ। साहब तुम सब्र करो नहीं ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਸਤਾਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। वो तुमको हुसैन लो कर छड़िया कर लो ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਰਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। और आप यजीदी बनते हैं, तेनू कह रहे ये क्या ही सौदा है दुश्मन को तीर चलाने दो, कभी नुसरत नहीं मिलती दर मौला से गंदों को, कभी नुसरत अपने नेक बंदों को मिलती दर मौला से गंदों को, कभी जाए नहीं गाने गा रहे अपने नेक बंदे मसरूर साहब को कुछ नहीं लभना। अहद शिकनी ना करो अहले वफा हो जाओ। भी शुक्र है आज गालां ते नहीं ना कड्डण लग पिया आंदे। अहद शिकनी यार ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮੁਕਣ ਦੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ऐसे कोई नज़मां सुनन ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ घर बह के गाए करो गल अहले शायद मैं म्यूट किते करो गल हो जा
पढ़न दे नज़म यार, एडी सोहनी नज़म पढ़ रहे। नहीं चौहान साहब ने कह दिता नहीं सुननी, बस गल खत्म। यार चंगियां गल्लां कर रहे हैं, आज तू आप कह रहे हैं गालां नहीं कटियां, चंगियां गल्लां भी नहीं करन दिंदे, गालां भी नहीं कड्डन चंगे दिंदे। दादी गल होना, चौहान साहब ने मना किया तो सारी गल है। पे हकीम राशिद साहब को तलावत भी सुनाओ, कोई सूरत सुनाओ, तलावत करो, तलावत तुसी बड़ी अच्छी करते हो। ये जो मैं क्या तलावत ये- सुनाए, आपकी क्योंकि तलावत माशाल्लाह है, बहुत अच्छी है। शूदर की औलाद है ये, तभी तो ऐसे राजपूत जितने भी है ना ये नकली हैं। जो पाकिस्तान के इलाके वो असली हैं, जो इंडिया के राजपूत के इलाके से इधर महाजर होके आए हैं ना, वो सब नकली हैं। वो सब शूदर की औलाद से राजपूत बने हुए हैं। समझाई कि नहीं? ये वही वाला हकीम तुम है लोगों को पता नहीं कंजर है खाना का है, इस बात ये मिर्जाई कंजर खाना का हकीम है। लोग के पाकिस्तान में आए हैं, वो जो राजपूत उधर से, वो सब नकली हैं। और जो पाकिस्तान ओ चाचा, जो राजपूत हैं वो असली हैं। ओ चाचा, ये तुम्हें पता होना ओ चाहिए। चाचा भोसड़ी वाले, अबे ओ चाचा, यहाँ पे मैंने तो पहले उधरों गाल आई हूँ। चाचा गया वो भी होना, है, चाचा अद भी है। नहीं उन्होंने बैठा हुआ। भोसड़ी वाले क्या है, भोसड़ी वाले ना भाई गाल कोई ना कटे, तारक गाल ना। चूं गाली साहब, नहीं है, ये गाली नहीं पीर है। साहब गाला ना हजरत कटो। तारक चूं अलैहिस्सलाम ये भी बैठा हुआ है, ये मुर्तद है और ये भी मुनाफिक भी है। इसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु